Namaskar to all. Again, I am here with the class 7 question paper of mathematics of mid-term exam, means half yearly exam. Here are the questions given. There are total 4 groups: section A 1 marks, section B 2 marks, section C 3 marks, and section D 4 marks. Question first: how many lines of symmetry in a circle are? In a circle there are total infinite line of symmetry. Question second: identity element of subtraction of rational number is does not exist, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन का नहीं होता है. क्वेश्चन थर्ड: द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. जो मीडियंस के ट्रायंगल के मीडियंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है. रेसिप्रोकल ऑफ 1 is 1, रेसिप्रोकल ऑफ -1 is also -1. So the right answer of question number 4 is A. Question 5: if triangle ABC congruent to triangle DEF, then angle A equal to corresponding angle D and side AC equal to corresponding angle DF. So the right option is D, angle D and DF. Next question number 6. The multiplicative inverse of 13/3 is multiplicative inverse means just their reciprocal, and reciprocal of 13/3 is 3/13. So right answer is C of question number 6. Question 7. 9 into 4 to the power 2 is same as 9 can be written as the 2 square. 9 can be written as a 3 square into 4 square. यहाँ हमने साइड में बनाया है, पावर सेम है तो 3 इंटू 4 स्क्वायर, सो 3 इंटू 4 12 स्क्वायर. सो राइट ऑप्शन इज ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 8. हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए स्क्वायर? In a square it is 4-sided regular polygon, so it has 4 line of symmetry. So right answer is B, 4. Question number 9. 2.7 into 10 to the power -3 means 2.7 means 27/10. 10 to the power -3 means 1/10 to the power 3. 10 to the power 3 means 1000. It means 27/10,000, and if we convert it into decimal it will be 0.0027. So right option is C. Question number 10. The 3 altitudes of an equilateral triangle are equal. Altitudes इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड मीडियन सारे इक्वल होते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 11. इरेगुलर हेप्टागोन हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री. हेप्टागोन मीन्स 7-sided रेगुलर पॉलीगोन, सो 7 लाइन ऑफ सिमेट्री. क्वेश्चन नंबर 12. 0.225 एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर इज. 0.225 मीन्स 225/1000. If we cancel it, 25 into 9 and 25 into 40, it will be 9/40. So right option is C, 9/40. Now question number 13. It is case study questions, each of 1 mark. Total 4 questions should be attempted. A ladder is placed in such a way that its foot is at a distance of 7 meters from a wall and its top reaches a window 24 meters above the ground. Which type of triangle is formed? Then ladder is attached to the wall, so wall will be perpendicular, so it is a right angle triangle, option A. Question second. AB is the dice of triangle ABC. AB, here AB is the ladder, that is the hypotenuse. Question, so right option is B. क्वेश्चन थर्ड. विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लेडर. यहाँ पर लेडर का लेंथ निकालने के लिए वी शुड अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो राइट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन 4. पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट. यहाँ पाइथागोरस थ्योरम कौन इसमें से है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है. ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बिकॉज ए बी इज द हाइपोटेनस, AC is the base and BC is the perpendicular. So right option is A of question number 4. Question 5. Length of ladder is. Here we should apply the Pythagoras theorem.
hypotenuse equal to under root base square plus perpendicular square 24 square 576 7 square 49. Their sum is 625 and their square root 25. So right option is C of question number 5. Now question number 14. Suppose that x, y, z are three rational numbers such that here are given x plus y plus z equal to x plus y plus z and values of x, y, z given. Question first. Name the law used in above expression. इसमें से एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड थ्री नंबर्स का सम किसी भी ग्रुपिंग में अगर करते हैं तो उसका सम सेम होता है. क्वेश्चन सेकेंड. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई का यहाँ पर सम हम लोग निकाले हैं तो यहाँ आया है 19/12. LCM इज 12. 4 इंटू 3 3 3 जा 9. 6 इंटू 2 12. 2 इंटू 5 10. 9 प्लस 10 19/12. क्वेश्चन थर्ड. सो राइट ऑप्शन इज बी 19/12. Question third. What is the value of x plus y plus z? Here we have already find out the x plus y. Their value is 19/12 and the value of z is -7/8. Now we find their sum. LCM of 12 and 8 is 24. 12 into 2 24. 2 into 19 38. 8 into 3 24. 3 into -7 21 and plus into minus 21. So 38 minus 21 17/24. So right option is B of question number 4. Question 5. The value of x plus y plus z and x plus y plus z are same. Question 3 का हुआ 17/24. 4 सेम है x plus y plus z. Only their groupings are changed. So right option is again B of question number 4 17/24. 3 का भी सेम आंसर होगा लेकिन ऑप्शन ए होगा. 4 का भी वही आंसर होगा लेकिन ऑप्शन बी होगा. क्वेश्चन 5. वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड आर इक्वल बिकॉज बोथ आर द 17/24. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. सब्ट्रैक्ट 5/63 माइनस 6/7. It means -6/7 -5/3. LCM of 7 and 63 is 63. 7 into 9 63. 9 into 6 54 but it in minus. 63 into 1 63. 1 into 5 -5 -54 and plus -5 it will be -59/63. So answer is -59/63. Now question number 16. Find the absolute value of the following. Absolute value means the numbers without the sign. So -1/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/5 होगा और 0/-4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0/4 एंड 0/4 0 जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो वह 0 ही हो जाएगा. यानी 0/4 भी सही है और 0 भी सही है. क्वेश्चन नंबर 17. ड्रॉ ए रेक्टेंगल एंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना है बिकॉज ये रेक्टेंगल है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. क्वेश्चन 18. विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल. 27/125. First we should find out the factorization of denominator means 125. It will be 5 into 5 into 5. So it is in the form of 2 and 5, 2 or 5 or 2 and 5. So it is terminating decimal. But question number B, 39/24. 39/24 in not in standard form. If we divide it, 39 is also divided by 3 gives 13 and 24 is also divided by 3 gives 8. 13/8. Now we should find out the prime factorization of it. 2 into 2 into 2. Here it in the form of 2, so it is terminating decimal again. But without simplify, if you find out then it will be wrong. Question number 19. Find the measure of each angle of an equilateral triangle. It will be 60 degree and we can find it by the method of isosceles triangle. If two sides are equal then their opposite angles are equal and all three sum of three angles is 180. So angle A will be 180/3 60 degree. You can find out. Question number 20. ABC and DEF are the ABC and DEF is the congruent triangle. So AB will be corresponding to DE and question B, angle C will be correspond to angle F, or option C,
EF is also corresponding to BC and angle B equal to angle E is their corresponding angle. तो यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -7/10 and -11/10. We know that between 2 rational number we can find many rational numbers. So here we can write any 3. After -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 1/10, 2/10 यानी 11/10 से बिलो तक हम ले सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके या एवरेज के फॉर्मूला से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Here 5 into x equal to -3 into 15. 5 if we send into RHS it will be divided. -3 into 15 by 5. 5 into 3 15. So -3 into 3 -9. x का वैल्यू यहाँ पर -9 होगा। क्वेश्चन 22 में एक और भी क्वेश्चन है, कंपेयर 5/3 एंड 2/7। 5 into 7 इक्वल टू 35, वेर 3 into 2 इक्वल टू 7। एक 35 आया, एक 6 आया। 35 इज ग्रेटर देन 6, सो 5/3 इज ग्रेटर देन 2/7। यहाँ पर 5/3 ग्रेटर हो गया 2/7 से। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल्सो ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है। Question number 24, here is given the figure. In that given 2 sides are equal, prove that both triangles are congruent. So first we should take triangle ADC and triangle CBA. Here is the first we have taken ADC, so we should take their sides. Their side is AD equal to CB, it is given, and CD equal to AB, it is also given, and third matching part we should take AC equal to CA, that is common. In this way all three sides are equal, so we can write triangle ADC and triangle CBA is congruent by triple S congruence condition. In this way you can do question number 24. Now question number 25, the vertical angle of an isosceles triangle is 100, find the base angle. In this condition it is the isosceles triangle, so their 2 sides will be equal and their opposite एंगल्स विल ऑल्सो इक्वल। सो एंगल बी और एंगल सी को हमने x ले लिया है, एंगल ए 100 दिया हुआ है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम 180 होता है। ए 100 है, बी और सी हमने x लिया है। x प्लस x 2x इक्वल टू 180 माइनस 100 इट मीन्स 80। x इक्वल टू 80/2 यानी 40 डिग्री। एंगल बी और सी बोथ विल बी 40 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 26, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। -5/4 को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से या यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके भी निकाला हूँ। 10 और 100 1000 टाइप नंबर्स को बना करके डिनोमिनेटर में, तो 4 को 10 बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने 25 से मल्टीप्लाई किया 100 बनाने के लिए। -5 × 25 -125/100। इसे हम लोग डेसिमल में यदि कन्वर्ट करते हैं इट विल बी -1.25। क्वेश्चन नंबर बी, -19/7। इसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हैं। 19 को 7 से डिवाइड किया गया, ये आया 2.714285। इसके बाद ये रिपीट होने लगा, यानी वी कैन राइट दैट इट -2.714285। 7144285 पर रेक्योरिंग होगा, क्योंकि ये सारे डिजिट फिर से रिपीट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन 26 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई एंड अगेन y माइनस एक्स फॉर द गिवन वैल्यू x इक्वल टू 2/3 y इक्वल टू 5/8 आर दे इक्वल। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। 2/3 माइनस 5/8 यह ऊपर में हमने बनाया है। LCM 3 and 8 is 24, 3 into 8 24, 8 into 2 16 हो गया न्यूमरेटर में, 8 into 3 3 into 5 15 हो गया न्यूमरेटर में, 16 माइनस 15 1/24 आया x माइनस वाई। फिर हमें y माइनस एक्स निकालना है, y माइनस एक्स निकालेंगे 5/8 माइनस 2/3।
LCM again will be 24. 8 into 3, 3 into 5 15 and 3 into 8 24, 8 into 2 16, यानी 15 माइनस 16 जो कि हो जाएगा -1/24। एक आया 1/24, एक आया -1/24। इस तरह से यह दोनों इक्वल नहीं है। x माइनस वाई नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स, सो वी कैन राइट दैट नो दे आर नॉट इक्वल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 कर सकते हैं। 27 में एक और क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 सो एज टू गेट 5/3। -1 में किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि उसका डिफरेंस 5/3 हो जाए। यहाँ -1 माइनस बॉक्स हमने लिया है रिक्वायर्ड नंबर को, आप x भी ले सकते हो, इक्वल टू 5/3। अब 5/3 को LHS में यदि भेजते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव में जो बॉक्स है अगर उसको RHS में भेजते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। LCM 3 हुआ, 3 इंटू -1 -3 एंड -5, -3 प्लस -5 -8 हो गया, यानी बॉक्स इक्वल टू -8/3 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 27 का और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज ऑन ए नंबर लाइन। यहाँ -3/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो 0 से निगेटिव साइड -1/5 -2/5 -3/5 थर्ड एंड -4/5 -5 मीन्स -1। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, ये राइट साइड जाएगा 0 से 1/4 2/4 3/4 4/4 फिर 1 हो गया, फिर 5/4 6/4 7/4 फिर 8/4 2 हो गया। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन और नॉट। यहाँ पर जो ट्रिपलेट दिए हुए हैं ये हमें चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। यहाँ 8² + 9² करते हैं जो कि 10² 100 के इक्वल नहीं आता है, यानी यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। आप इसको स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। 8² 64 9² 81। क्वेश्चन बी है 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 25 5 का स्क्वायर है, यानी 3² + 4² इक्वल टू 5² हो रहा है। यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, triangle PQR is an isosceles triangle with PQ equal to PR. If R 42 then find the measure of the angle P। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 30 को यहाँ नीचे में देख सकते हैं। ट्रायंगल PQR हमने ड्रॉ किया है। PQ इक्वल टू PR इक्वल है, इसलिए एंगल Q और एंगल R इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। यहाँ पर अगर R 42 है तो Q भी 42 हो जाएगा। अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल P + Q + R इक्वल टू 180, P मालूम नहीं है, एंगल Q और R दोनों 42 डिग्री है, 42 + 42 84 डिग्री। 84 डिग्री को RHS में भेजेंगे, 180 - 84 96। इस तरह से एंगल P 96 डिग्री हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें चेक करना है कि 8 10 15 और 6 to 8 ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट हो सकता है या नहीं। इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी मेथड से वेरीफाई करेंगे। दो साइड का सम देखेंगे थर्ड से ग्रेटर आ रहा है या नहीं। 8 + 10 18 ग्रेटर देन 15 यहाँ पर है। 10 + 15 ग्रेटर देन 8 यह भी है। 8 + 15 23 यह भी 10 से ग्रेटर है। तो यहाँ लिख सकते हैं इट कैन बी पॉसिबल लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। यह ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं। अगर एक पूरा है तो तीनों को मेजर करके देख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन 6 to 8, 6 + 2 8 दैट इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड 8। यहाँ पर एक में ही पता चल गया कि यह थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ ए triangle because it do not satisfy the triangle inequality. Now question number 31, if a equal to given 3/5 to the power -2 divide 7/5 to the power 0, find the value of a to the power -3। यहाँ पर a इक्वल टू हमें फाइंड करना है 5/3 to the power 3/5 to the power -2। निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो यह 5/3 to the power 2 हो जाएगा।
5/3 टू दी पावर 2 मीन्स 5×5 = 25/9, और किसी का भी पावर 0 होता है इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 25/9 × 1 यानी 25/9 ही हो गया ए का वैल्यू। अब हमें निकालना है ए टू दी पावर -3। 25/9 टू दी पावर -3 नेगेटिव पावर से पॉजिटिव बनाएंगे, 9/25 होगा। 9 का क्यूब 729 एंड 25 का क्यूब 15,625। आप क्यूब निकाल के देख सकते हो। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 729/15,625। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन ईजी है, आपने देखा कि इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, थैंक यू।